Okay, so we have done valence bond theory, that is VBT, and in VBT we saw the different types of bonds, sigma bonds, pi bonds, and we understood the formation of sigma bonds, we understood the formation of pi bonds, we did the diagrams for the orbitals. So those all were in VBT. So VBT could explain the formation of bonds, that is sigma bonds as well as pi bonds, and also many molecules could be explained with the help of VBT, which we have done already. But there are certain drawbacks of VBT, and because there are certain drawbacks, there is another theory which is there after VBT, and that theory will be done today. So a few drawbacks of VBT need to be addressed. The first drawback of VBT is that VBT could not explain the paramagnetic nature of oxygen. Now, what does this mean? If you look at oxygen molecule, if you look at the structure, so this is oxygen, and these are the lone pairs. So this is the structure of oxygen, O2. Now, if I look at this structure and if I go as per the VBT, then as per VBT, I can count the number of lone pairs. I can count the number of lone pairs. So, how many lone pairs are here in oxygen? Four. 1, 2, 3, 4 total. So total is 4. Now see, all these are paired if you see. According to the concept of VBT, if I look at the structure, there is one lone pair here, there is one lone pair here, there is one lone pair here, and there is one lone pair here. Which means all are paired. Pair means what? There are two in one set. So all are paired. If all are paired, all these electrons are paired, because you see there are even electrons. If the number of electrons is even, then you see that the electrons are paired. So if all the electrons are paired in a molecule, then that molecule should not get attracted by a magnet. That molecule should not get attracted by magnet. So oxygen gas is supposed to be, in that case, passive, or it should not show any attraction when a magnet is drawn close to it. But ऐसा नहीं हुआ था. Experimentally, it was seen that oxygen gas can be converted to liquid, and when oxygen is in the liquid form, it gets attracted. It gets attracted towards magnet. So when oxygen liquid form is getting attracted towards magnet, that means it should not have all paired electrons. There must be some unpaired electrons which are getting attracted towards the magnet. Because if a molecule has all paired electrons, it does not get attracted towards the magnet. But experimentally, it was seen that oxygen in liquid form was getting attracted towards the magnet. So that means something is wrong with VBT. So this is the first drawback. The most important drawback of VBT is this part, where oxygen was found to be paramagnetic. Paramagnetic means something which shows attraction towards the magnet. Paramagnetic. So if it is showing some attraction towards the magnet, then it is called paramagnetic.
So that is the first thing. If oxygen has no unpaired electrons, then how is it getting attracted towards the magnet? So this was a big question, and VBT could not explain this behavior of oxygen. So the major drawback of VBT was this: why oxygen is getting attracted towards the magnet. That means there must be some unpaired electrons in oxygen. So that is the first thing. Second thing, VBT could not explain fractional values of bond order. Now, so far, when we have done the bond order values like 1, 2, 3, these are integers. These are integers. But if I talk about fractional values like 0.5, 1.5, 2.5, these values cannot be explained by VBT. How can we have 0.5 bond? How can we have 1.5 bonds? How can we have 2.5 bonds? This thing is not a part of VBT. VBT just said that bond order can be 1 or 2 or 3. So how can we account for the fractional values of bond order? 1.5, 2.5, 0.5. So experimentally it was seen that certain molecules have fractional bond order. And then VBT could not explain the reason for fractional bond order. So that is another drawback of VBT. Okay, next. VBT could not explain the existence of some species like H2 plus, He2 plus, C2, D2. It could not explain how bonds are formed in these species. So H2 plus, B2, C2, He2 plus, how are these formed? This could not be explained by VBT. Certain drawbacks we have seen.
Okay, so these were certain drawbacks of BBT. Now, in order to address these drawbacks, another theory was proposed, सर and थर्ड that पॉइंट theory is वापस MOT. एक्सप्लेन करो ना. थर्ड पॉइंट वापस एक्सप्लेन करो, आपका आवाज टूट रहा था. अभी आवाज ठीक है? हाँ. हाँ. Okay. So, if we look at the drawbacks, then there is another drawback which you can see, that is VBT could not explain the existence of certain species like H2 plus, He2 plus. तो क्या हो रहा है अभी ये जो अलग टाइप के स्पीशीज दिख रहे हैं H2 plus, He2 plus, ये कैसे बन रहे हैं, उनके बीच में बॉन्ड कैसा हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड है वो एक्चुअली फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है, दैट वाज नॉट explained by VBT. And if you count the number of electrons also, you will come to know that H2 plus के अंदर how many electrons are there? Yes. So H2 plus के अंदर how many electrons are there? 1. Yeah. So there are 2 electrons in H2 molecule, but this is not H2 molecule. This is H2 plus, which means 1 electron has been lost by H2 molecule, and so I have 1 electron left. So if there's only 1 electron, then how is a bond being formed? This could not be explained by VBT. So these species which are written are some species which were discovered later after experiments. And then VBT was not able to justify the formation of bonds in these species because some of these are fractional bond order. And as I said, if there is only 1 electron in this H2 plus, then how is H2 plus being formed? Just because it has 1 electron, then how is a bond formed? So that is also one doubt. So to address these problems, there is another theory which is proposed, and that is molecular orbital theory, and that is the last part of the chapter. So MOT is the short form in the exam. Sometimes they write MOT. Like for VBT, valence bond theory is the full form. MOT के लिए molecular orbital theory is the full form. अब molecular orbital theory में क्या है? We will see one by one the postulates. Okay. यहाँ पे first postulate is that the atomic orbitals. अब देखो हम लोगों ने VBT में भी atomic orbitals के साथ डील किया था when we were discussing the formation of bonds. तब हम लोगों ने क्लास में किया था कि ये p ऑर्बिटल आ रहा है, s ऑर्बिटल आ रहा है, तो एटम के ऑर्बिटल्स आ रहे थे, आपस में जुड़ रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, तो these all were discussed in VBT. Likewise, if you extend the concept to a little higher level, you will get the postulates for MOT. तो क्या क्या अभी यहाँ पे पॉइंट्स है? फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स वैसे के वैसे ही है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम लोगों ने VBT में लिए थे. So atomic orbitals are present, and these atomic orbitals will overlap to form bonds. So that part is common in this theory as well. तो atomic orbitals के पास आने से, के overlap करने से molecular orbitals बनते हैं. अब हम लोग आ रहे हैं the main terminology में. So the terminology is molecular orbital. So it is said that when atomic orbitals are coming close and combining, we get molecular orbitals. तो कुछ अलग टाइप की चीजें बन जाती है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, और जो चीजें बनती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स, the electrons in the molecule belong to the molecular orbitals. मतलब क्या, एक बार जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर गए, एक बार जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लिया, अब there is nothing called atomic orbitals. Now whatever is formed is called molecular orbitals. Molecular orbitals बनने के बाद अभी जो इलेक्ट्रॉन्स आप रख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, they belong to the entire molecule. So now it is no longer confined to a particular atomic orbital. अभी सब कुछ वो पूरे मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर की बात कर रहे हैं.
हम लोग पूरे का पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और उस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नाम की चीजें हैं और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? एक नई एंटिटी है। इट्स अ न्यू एंटिटी फॉर्म। इट्स अ न्यू एंटिटी फॉर्म। न्यू एंटिटी का मतलब क्या है? जो बिल्कुल नई चीज पैदा हो गई है। So molecular orbitals are new entities formed when atomic orbitals combine. तो molecular orbitals जो बन गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स अभी molecular orbitals के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। So first thing that you have to remember is that molecular orbitals are new entities formed. Okay, यहाँ पे लिख देता हूँ। So new entities बनती है, उनको हम लोग बोल रहे हैं molecular orbitals. अब बिल्कुल नई चीज बन गई। The electrons in the molecule belong to the molecular orbitals. अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएगी वो हम लोग बोलेंगे दे आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड देयर इज नो एटॉमिक ऑर्बिटल लेफ्ट। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल नाम की अभी कोई चीज हम लोग नहीं बोलेंगे। एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी सब कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। So there is nothing called atomic orbital now after the molecule is formed. अभी सब कुछ क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर है। तो जो नई एंटिटीज दोनों बन गई, ये नई एंटिटीज को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ऐसा समझो कि कुछ नए कमरे बन गए, ऐसे नए टाइप के स्पेस आपको एलोकेट हो गए। तो नए स्पेस या नए कमरे अगर आपको दिखे तो पुराने कमरों के बारे में भूल जाओ। फॉरगेट अबाउट द ओल्ड रूम्स, यू फोकस ऑन द न्यू रूम्स दैट यू हैव बीन अलॉटेड नाउ। सो इफ यू आर स्टेइंग इन अ होटल, तो अगर आपका रूम चेंज हो रहा है तो अभी पुराने रूम के बारे में भूल जाओ। अभी नए रूम में एक बार आप शिफ्ट हो गए मतलब इन द न्यू रूम ओनली यू हैव टू स्टे। दैट इज हाउ इट इज। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पुराने रूम की तरह है एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नए रूम की तरह है। So once atomic orbitals combine to form molecular orbitals, we will forget about the atomic orbitals. We will just focus on the molecular orbitals. Okay. So once molecular orbitals are formed, there is nothing called atomic orbital left. Okay. Now, the molecular orbitals are existing within the molecule. Yes, they're within the molecule. And the molecular orbitals belong to the whole molecule. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या है? अगर मैंने बोला कि हाइड्रोजन के दो एटम्स मिल रहे हैं और मिलके बन रहा है H2 मॉलिक्यूल। अभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अंदर है, किसके अंदर है? H2 के अंदर है। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द एंटायर मॉलिक्यूल। मतलब दे बिलोंग टू दिस H also, they belong to this H also. ऐसा नहीं है कि वो किसी एक एटम का प्रॉपर्टी है, नहीं, it is belonging to the entire molecule. So both the hydrogen atoms will have equal contribution to the molecular orbital. मतलब दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो है उन दोनों का ही हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल। इट इज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू एनी वन पर्टिकुलर एटम। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि, चलो और एक एग्जांपल देते हैं। अगर मानो ऐसा कोई मॉलिक्यूल बना NO, तो NO के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, NO के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, they belong to nitrogen also, they belong to oxygen also. ऐसा नहीं कि they belong to only one particular, कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ नाइट्रोजन का है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ ऑक्सीजन का है, ऐसा नहीं है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है that is a property for both the atoms present in the molecule. So एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है that is common to both the atoms present in the entire molecule. So NO के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है
वो N के भी है, वो O के भी है, वो किसी एक का नहीं है. Hence, this point is important. तो ये वही बोला यहाँ पे कि the molecular orbitals belong to the whole molecule. whole molecule, ऐसा नहीं कि किसी एक एटम का प्रॉपर्टी है, वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर बिलोंग करता है एंड पूरे मॉलिक्यूल का उस पे इक्वल हक है. एंड therefore we say that the molecular orbitals are under the influence of nuclei of all atoms. Nuclei is the plural form of nucleus. तो ये जो फॉर एग्जांपल आपका NO का एग्जांपल था, नाइट्रोजन का भी न्यूक्लियस है, ऑक्सीजन का भी न्यूक्लियस है. तो बोथ नाइट्रोजन का न्यूक्लियस एज वेल एज ऑक्सीजन का न्यूक्लियस will exert influence on the molecular orbital. मतलब क्या, जो molecular orbital बना वो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का भी influence रहेगा उस पे, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का भी influence रहेगा उस पे. So both nitrogen and oxygen can control the molecular orbital form. So both have equal contribution, or both can control the molecular orbital and the things that are happening inside the molecular orbital. Since the entire molecule की property है वो, इसके लिए हम लोग बोलते हैं molecular orbitals are polycentric. Polycentric मतलब क्या, वो हर एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है. पॉलीसेंट्रिक, पॉली मतलब मल्टीपल, सेंट्रिक मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस. जैसे यहाँ पे मैंने NO बोल दिया, तो नाइट्रोजन का भी अपना न्यूक्लियस है, ऑक्सीजन का भी अपना न्यूक्लियस है. दोनों न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो अंदर है. So the molecular orbitals are actually subject to influence of both nitrogen as well as oxygen. ऐसा नहीं है कि किसी का ज्यादा किसी का कम, कि नाइट्रोजन ज्यादा डोमिनेट करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को या ऑक्सीजन ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ऐसा नहीं है. Both nitrogen and oxygen can control the molecular orbital form. Hence, we say that molecular orbitals are polycentric. Polycentric मतलब मल्टीपल एटम्स के इन्फ्लुएंस में, मल्टीपल न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. तो पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, the molecular orbitals belong to the entire molecule and hence they are under the influence of all the nuclei of atoms present. जितने भी एटम्स है, हर एटम का न्यूक्लियस कैन कंट्रोल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो द वर्ड होल इज इंपॉर्टेंट. होल मॉलिक्यूल, होल मॉलिक्यूल को बिलोंग करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड हेंस दे आर सेड टू बी पॉलीसेंट्रिक. So this was the third point. Next, the number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals participating. मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. So the number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals participating to form molecular orbitals. अगर मैंने बोला चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो चार molecular orbitals बनेंगे. So exactly equal number of molecular orbitals will be formed. जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स से उतने ही molecular orbitals भी बनने वाले हैं. So the number of molecular orbitals is equal to the number of atomic orbitals participating. तो अगर मैंने बोल दिया कि वालेंस ऑर्बिटल और वालेंस ऑर्बिटल आपस में ये कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं. If these two orbitals are overlapping to form molecular orbitals, तो कितने molecular orbitals बनेंगे? 1. ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है. So how many orbitals are combining? ये atomic orbital है. This is atomic orbital. So these are atomic orbitals. और दो atomic orbitals combine करेंगे तो कितने molecular orbitals बनेंगे? 2. 2. Okay. This is one and this is another. तो ये दो molecular orbitals बन गए. Molecular orbital का short form is MO.
and atomic orbital का short form is AO. सर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्या? हाँ, we will do that representation after some time. उसका डिटेल में डिस्कशन चलेगा रिप्रेजेंटेशन। फिलहाल मैंने लिख दिया, चलो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में पास में आ रहे, ओवरलैप कर रहे हैं। नेक्स्ट very important point is the fifth one. Atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbitals. मतलब क्या? जैसे 1s 1s के साथ जुड़ रहा है, 2s 2s के साथ जुड़ रहा है, 2p 2p के साथ जुड़ रहा है, 3s 3s के साथ जुड़ रहा है, तो ऐसे एनर्जीज के इतने कम होने चाहिए डिफरेंस। ओके, एंड प्रॉपर सिमेट्री का मतलब क्या है? अब यहाँ पे S लिख दिया और यहाँ पे ऐसा P कर दिया, अब इनकी सिमेट्री बिल्कुल अलग हो गई क्योंकि एक ऐसी है और एक परपेंडिकुलर ऐसा टाइप का है, तो इनके बीच में फिर कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, इनके ओवरलैप से कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। इस तरीके से आ गया। सो इट इज सिमिलर टू व्हाट वी वर डूइंग इन VVT कि सिमेट्री देखो ऑर्बिटल ओवरलैप से बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट इज हाउ इट इज। तो यहाँ पे भी वही है, atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbitals। अब किसने बोल दिया कि 2p को 6p के साथ कंबाइन कराओ, नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 2 and 6। सो 2 and 6 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, सो 2p and 6p आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बना सकते। So that is how it is. When we are filling molecular orbitals, we will follow Aufbau principle, Hertz rule and Pauli's rule. तो ये कॉमन जो 3 रूल्स हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, सेम रूल्स विल बी यूज्ड हियर आल्सो फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब क्या? अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने एक बना दिया ऐसा, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकता हूं। एक अगर मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रख दिया, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैं सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकता हूं, बिकॉज आई नीड टू फॉलो पाउलीज रूल। ये पाउलीज रूल के हिसाब से हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, अगर इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो मुझे पहले यहां भरना पड़ेगा फिर यहां भरना पड़ेगा। आई कैन नॉट फिल लाइक दिस कि एक में भर दो, this is wrong, this is correct. So these are the rules that we have used for atomic structure. Which rule is this जो मैंने अभी दिखाया है? Hertz rule. Hertz rule. Hertz rule है ये, तो वही बोला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी Hertz rule एप्लीकेबल होगा। So अगर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, आप एक-एक इलेक्ट्रॉन एक-एक में डालोगे, that is called Hertz rule. You cannot fill both the electrons in one orbital first. तो Hertz rule यहाँ पे भी फॉलो होगा। Aufbau rule क्या है अभी? Aufbau principle. Aufbau principle ये कि पहले जिसकी एनर्जी कम है वो ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन डालोगे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स will start occupying the orbitals which have higher energies. तो असेंडिंग ऑर्डर में एनर्जी में जाना है, तो वो सब रूल्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। Next, when 2 atomic orbitals combine, 2 molecular orbitals are formed. That is okay, that we have done already. अब आगे का इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 नए रीजन्स बनते हैं, 2 ऑर्बिटल्स जो नए मॉलिक्यूलर बनते हैं, उनके नाम है which we have to understand the terminology. One molecular orbital is called bonding molecular orbital.
and the other molecular orbital is called anti-bonding molecular orbital. मतलब क्या? जब दो atomic orbitals आपस में इंटरफियर करते हैं, वो इंटरफियर करने के बाद दो molecular orbitals बनाएंगे. दो molecular orbitals में से एक का नाम रहेगा bonding molecular orbital और दूसरे molecular orbital का नाम रहेगा anti-bonding molecular orbital. Be thorough with this terminology. So when two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed. Which are there two? One of them is called bonding molecular orbital. The other one is called anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital का short form क्या होगा? BMO. Bonding molecular orbital को हम लोग ऐसे represent करते हैं short form BMO. और एंटी बॉन्डिंग को क्या करेंगे? ABMO. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सर एक बार 6 पॉइंट दिखा सकते हैं क्या? 6 पॉइंट. हाँ सर, हो गया. 7th वाला लिख लो. तो नीचे कीजिए ना. नोटेशंस, टर्मिनोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म्स, ये सब अच्छे से याद कर लो. BMO एंड ABMO दो बनेंगे. ओके, नाउ अभी BMO और ABMO में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं. So a bonding molecular orbital is lower in energy and an anti-bonding molecular orbital is higher in energy. तो मुझे बताओ which is more stable दोनों में से? BMO. हाँ, BMO. BMO. Why? सर लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी होती है. Exactly. जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा. So a bonding molecular orbital is lower in energy and that is why it will be more stable than anti-bonding molecular orbital because anti-bonding molecular orbital has higher energy. Okay. तो ये हो गया आपका 8th postulate. Done? Okay. Next. A bonding molecular orbital can hold 2 electrons and an anti-bonding molecular orbital can also hold maximum 2 electrons. This is which rule? According to which rule in atomic structure? अपना ऑफबर्ग. अवबर्ग तो ये बोलता है कि पहले लोअर एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन डालो उसके बाद हाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन डालो. हंस रूल था.
दो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है ना किसी भी ऑर्बिटल की, तो वो पाउलीज रूल है. An orbital can at the most have 2 electrons. Okay, तो ये पाउलीज रूल है. So the maximum number of electrons which can be accommodated in any particular molecular orbital is equal to 2, चाहे वो कोई भी atomic orbital से बना हो. Molecular orbital के अंदर max to max 2 electrons can be accommodated. Remember this. We will need this when we were doing the electronic configuration. We will need that time. Okay. Next point. Next point क्या है? A bonding molecular orbital is formed. कैसे बन रहा है वो देखेंगे. A bonding molecular orbital is formed by constructive interference of waves when two waves are in the same phase. Interference physics में डिटेल में होता है, बट फिलहाल थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा जो चाहिए यहाँ पे. Constructive interference of waves मतलब the waves are in the same phase. मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा हो जाएगा कि ऐसा कोई वेव है, ऐसा कोई वेव है और एक वेव भी आ रहा है ऐसे ही. तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो इन दोनों का इंटरफेरेंस विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिकॉज बोथ आर इन द सेम फेज. और अगर मैंने दोनों के बीच में माइनस साइन लगा दिया तो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. Okay, now I'm asking you a question. Tell me whether it is constructive interference or destructive interference. What about this combination? Destructive. Destructive. कैसे पता चला? सर क्योंकि बीच में तो प्लस है. नहीं सर, अगर उसको भी उसके ऐसा मतलब फर्स्ट वाले के ऐसा कन्वर्ट किया तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा. Yes, that means यहाँ पे प्लस है, लेकिन प्लस देख के कंस्ट्रक्टिव मत बोल देना. देखो इसका ओरिएंटेशन यहाँ पे ऐसा है ना शुरुआत में, जबकि यहाँ पे शुरुआत में नीचे से चालू हो रहा है, तो अलग हो गए दोनों, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. फाइन, सो यू हैव अंडरस्टूड दैट पार्ट. हमें ज्यादा नहीं चाहिए इसमें वेव्स का, ये तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा चाहिए, फिजिक्स में वेव्स का ज्यादा यू नीड. So a bonding molecular orbital is formed by constructive interference of waves when two phases are in the same phase. तो ये हो गया. Similarly, an anti-bonding molecular orbital will be formed by the destructive interference of waves. That is when the two waves are in opposite phases. मतलब क्या हो गया? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस को देखा गया था एक्सपेरिमेंटली, यानी जब
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया था, तब ये देखा गया था कि ऐसे दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम दे दिया गया और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम दे दिया गया। जब दो वेव्स कंबाइन करते हैं तो या तो वो कंस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव वे में भी कर सकते हैं, गारंटी नहीं है कि कौन सा करेंगे। सो वी टेक टू डिफरेंट एनर्जी रीजन्स, एक कंस्ट्रक्टिव की वजह से एक डिस्ट्रक्टिव की वजह से, और दोनों पॉसिबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वी हैव सेड दैट two atomic orbitals combine to form two molecular orbitals. One will be by the constructive interference of waves and one will be by the destructive interference of waves. Because जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सबके सब वेव फंक्शंस हैं। अगर क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप घुसोगे तो सब कुछ वेव फंक्शंस के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेव फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसके लिए थोड़ा इस लेवल पे हम लोग बोल रहे हैं, because we don't want to deal with the complicated quantum chemistry. So what we are doing is we are talking in a very superficial manner, and that is why we are saying that दो waves जब constructive interference कर रहे हैं तो वो एक phase में है तो वो bonding molecular orbital बना रहा है, और जब दो waves destructive interference कर रहे हैं तो वो anti bonding molecular orbital बना रहे हैं. So it is a way of simplifying the actual concept. So it is an oversimplification just done in order to understand it at a very preliminary level. तो आपको इतना ही पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और एनर्जी किसकी ज्यादा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, because energy is inversely proportional to stability. Okay, तो ये था 10th postulate. So this was the last postulate about the theory. अब हम लोग देखेंगे आगे इन postulates को एक-एक करके, मतलब इन postulates को हम लोग explain ये करेंगे diagrams के हिसाब से, waves के हिसाब से देखेंगे। टेक्निक्स टू शो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे दिखा सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया था तो अभी उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब वेव फंक्शन को शाय से रिप्रेजेंट करते हैं, शाय, which symbol, the symbol which you see on the screen right now, that is called शाय। वेव फंक्शन का मतलब होता है शाय। तो शाय ए और शाय बी दो अलग वेव फंक्शंस ले गए, शाय ए एंड शाय बी। अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाया जा रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? वो दोनों वेव्स के इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट वेव आया उसका देखो एम्पलीट्यूड बढ़ चुका है, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है दोनों के बीच, तो रिजल्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, वो शाय प्लस शाय बी को रिप्रेजेंट करता है, शाय ए प्लस शाय बी। So this is one way to show the constructive interference of waves. और एक तरीका होता है ग्राफिकली दिखाने का। और एक तरीका होता है ऐसा, ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखाया जा रहा है, ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखाया जा रहा है। ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है ना, दैट इज फॉर द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम। वो न्यूक्लियस का रीजन है। अब दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तब ये एड अप हो जाएगा, ये वाला और ये वाला एड अप हो जाएगा, राइट? तो ऐसा बन जाएगा शाय प्लस शाय बी।
सर ऊपर वाले में एड अप होके सेम साइन रहेगा, इसमें ऐसा क्यों हुआ? मतलब मतलब ऊपर वाले में तो वैसा ही वेव रहेगा ना, दोनों का एड हाँ, होकर। ये तो वेव्स है ऊपर वाले की। अभी मैं वेव नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। शाये और शाये बी को अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूँ तो कैसे होगा वो दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये ग्राफिकल है क्या? हाँ, ये ग्राफ है। ये जो सेकंड वाला दिख रहा है ना, ये ग्राफ है। देखो, इसलिए एक्स और वाई एक्सिस है। अच्छा हाँ। बट यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग अलोंग द एक्सिस, ऐसे ही दिखाना है, नॉट रिक्वायर्ड। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। मतलब क्या हो गया, देखो अभी ध्यान से, इसका मतलब क्या है। मैंने क्या बोला था, जो डॉटेड लाइन से वर्टिकल वाले वो न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हैं, दो एटम्स के न्यूक्लियस को। तो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद जो दो न्यूक्लियाई के बीच का रीजन है, कहने से वहां पे ये चीज हो रही है, ये वाली चीज, विच मीन्स यहाँ पे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है जो भी कर्व्स दिख रहे हैं। तो दो न्यूक्लियस के बीच में काफी ज्यादा दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, राइट। तो ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है, दिस इज बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई। तो ये देखो ग्राफ जो है वो काफी ऊपर है, मतलब कंपेयर टू दिस रीजन एंड दिस रीजन काफी ऊपर है। मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और वो कहाँ है, वो बिटवीन टू न्यूक्लियाई। सो इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल you have high electron density between the nuclei. न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये ग्राफिकली दिखा रहे हैं। तो आपको ये अगर पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है इस ग्राफ का, तो क्या बोलोगे? If they ask you what is the significance of this graph, then what will you say? The electron density is more between the two nuclei. हाँ, the electron density increases between the two nuclei after constructive interference, ऐसा बोलना है। ओके, अब और एक चीज है यहाँ पे, ये तो वेव फंक्शंस का बस एडिशन किया है हम लोगों ने। देयर इज अनदर थिंग इन क्वांटम व्हिच इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, वेव फंक्शंस का स्क्वायर करते हैं पहले, वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, शाय स्क्वायर। तो वो जो शाय स्क्वायर होता है, दैट शाय स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो शाय प्लस शाय बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर किया था, राइट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वापस वही हुआ, दोनों में डिफरेंस है? डिफरेंस नेचर वाइज तो नहीं है, इतना डिफरेंस है कि ये जो आप स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ के वैल्यूज विल चेंज ना।
ये सिर्फ शाय है और वो शाय स्क्वायर है. स्क्वायर इज ऑलवेज अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट बिकॉज नेगेटिव जो चीजें होगी, अब यहाँ पे जैसे पॉजिटिव ही था, बट जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे तो आसान हो जाएगा. स्क्वायर करके देखना, सब कुछ पॉजिटिव में आ जाएगा ना, वैल्यू स्क्वायर करोगे. हाँ तो आपको अगर ऐसा दे दिया एग्जाम में कोई ग्राफ, तो उसमें भी आपको क्या बोलना है अल्टीमेटली? दो वर्टिकल लाइंस जो है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है. तो बिटवीन द न्यूक्लियाई द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज वेरी हाई, ऐसा बोलना पड़ेगा. बिटवीन द टू न्यूक्लियाई द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज हाई and that is why we call this a bonding molecular orbital. अगर इसको स्क्वायर करोगे शाय प्लस शाय बी होल स्क्वायर, तो ये आएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो इसके लिए ब्रैकेट में मैंने ये लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गिवन बाय दिस. ओके, अलोंग द एक्स एक्सिस क्या प्लॉट कर रहे हैं हम लोग? दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस है. डिस्टेंस कहां से? न्यूक्लियस से. देखो ये दो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से आप ऐसे जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है. न्यूक्लियस से आप ऐसे जा रहे हो डिस्टेंस, तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है. बढ़ कहां रही है? सिर्फ इस रीजन में, दो न्यूक्लियाई के बीच. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाने का तरीका, या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ग्राफ्स का तरीका. अब डिस्ट्रक्टिव के लिए सर, सर वो जो दो वर्टिकल लाइन है वो क्या है? न्यूक्लियस मैं का बोल रीजन, न्यूक्लियस. ईच वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स की न्यूक्लियस है वहां. एटम, एक एक एटम का न्यूक्लियस. दो एटम्स ले रहे हैं ना हम लोग, तो दो एटम के दो न्यूक्लियाई. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखो, अभी ये डिस्ट्रक्टिव हो गया शाय ए और शाय बी. अगर दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड है, मतलब एम्पलीट्यूड का वैल्यू दोनों अलग अलग है, तो फिर पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं करेंगे एक दूसरे को. अगर इक्वल है तो ही कैंसिल आउट करेंगे ना. अगर इक्वल नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे. तो कैसे बनेगा? जैसे नीचे दिया है अभी. तो ये क्या हुआ? ये कम हो गया एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का. सो जस्ट सी दिस अगेन. ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. अगर शाय और शाय बी के अलग अलग एम्पलीट्यूड्स है तो ऐसा हो जाएगा रिजल्टेंट. अच्छा आप बताओ, अगर दोनों का इक्वल है एम्पलीट्यूड तो क्या होगा? तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ जाता. जीरो हो जाता टोटल. हाँ, मतलब कुछ फिर वेव ड्रॉ नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा होगा तो, अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम आएगा. तो कैसा होता फिर अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे? तो बाय चांस आपको एग्जाम में ऐसा दिख गया कि ऐसा दिखाया उन्होंने, ऐसा और ऐसा, अगर ऐसा दिखाया और फिर ऐसा कर दिया, तो क्या बोलोगे फिर? इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है एंड दोनों के एम्पलीट्यूड के वैल्यूज जो है वो इक्वल थे. इसके लिए सर इस वाले में जो रिजल्टेंट है इसका मतलब जो साई ए है वो बड़ा है ना? अभी वाला ना? हाँ हाँ हाँ.
और अगर ऐसा कर दिया तो दोनों का इक्वल, इसके लिए 0। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, आपको जस्ट ये रहेगा ना, ऑप्शंस में कोई एक ही रहेगा। So that is okay. Now more important is this. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इसके लिए देखो मैंने एक को नीचे बना दिया, शाई एंड शाई बी। तो शाई माइनस शाई बी हो जाएगा इसका मतलब। तो ऐसा हो जाएगा, राइट। सर ये प्लस के फॉर्म में लिखा है इसलिए साई बी का नीचे की तरफ दिखा है, अगर माइनस के फॉर्म में लिखते तो ऊपर दिखाता है ना। यस यस यस। ओके सर। बट रिजल्टेंट तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा ना, इसको तो और कोई तरीका नहीं दिखाने का, ये इसको शाई माइनस शाई बी का हाँ, रिजल्टेंट। हाँ रिजल्टेंट तो सेम। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, स्ट्रेट अवे दे आस्क यू, इसमें कुछ घुमा फिरा के पूछने का स्कोप नहीं। Direct questions are asked. Which of these represents constructive interference? Which of these represents destructive interference? Whose energy is more? Whose stability is more? Which of the following graphs is correct for a bonding molecular orbital? तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सर। अब वापस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे, यानी शाई माइनस शाई बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। सर इसमें कैसे पता चलेगा कि शाय बड़ा है कि शाय बी? वही ना, अभी जिसको तुम ज्यादा बड़ा दिखाना चाहो, अब अगर ऐसा दिखाना है तो इसको ऐसे दिखा दो, शाय को ऐसे दिखा दो। क्योंकि उसके रिजल्टेंट वेक्टर से तो रिजल्टेंट से तो पता चल रहा था कि शायद बड़ा है, पर इस ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा होगा ना सर, ये जो डिस्टेंस ये वाला जो ऐसा है, ये ऊंचा हो जाएगा ज्यादा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया है तो ऐसा हो जाएगा ना सर, मानो देख रहे हो अभी बड़ा छोटा। हाँ सर। बट दैट्स ओके, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट नाउ, वो जरूरत भी नहीं इसकी। बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग वैल्यूज एंड प्लॉटिंग ना, कैसे भी हम लोग प्लॉट कर, हम बस नेचर को दिखा रहे हैं कि ऐसा होगा। तो अभी ये हो गया हमारा क्या, शाय माइनस शाय बी का रिप्रेजेंटेशन। नाउ इफ आई स्क्वायर दिस, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से स्क्वायर करेंगे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये आप जब मैथमेटिक्स में ग्राफ्स पढ़ोगे तो ग्राफ कैसे स्क्वायर करने से बदलता है, तभी यू विल लर्न दैट। फिलहाल के लिए याद कर लो कि अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब स्क्वायर में कुछ नेगेटिव नहीं रहता है ना। तो ये रीजन और ये रीजन जो नेगेटिव दिख रहा है बिलो एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव ना, तो दोनों के दोनों को ऊपर कर देंगे, ऐसा है। तो दोनों के दोनों को ऊपर कर दिया। Now tell me, very important observation, what is happening between the two nuclei? The electron density is decreasing. हाँ, मतलब एक पॉइंट आ रहा है जहां पे जीरो भी हो रहा है, which means between the two nuclei electron density is less. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किधर है? Away from the nucleus. हाँ,
तो इसके कंपैरिजन में अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस में ज्यादा है, बीच में कम है, अवे में ज्यादा है। तो इसके लिए ऐसे दिखा सकते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें, राइट। अब दिख गया डिफरेंस बीच का, दो वर्टिकल लाइंस के बीच का डिफरेंस, बीच में देखो क्या है, और लाइंस के आजू बाजू तरफ देखो, दो लाइंस के बीच में देखो वो कितना कम होके 0 तक आ रहा है। So that is why we say that in an anti-bonding molecular orbital, the electron density between the two nuclei is decreasing. Correct. Okay. Bonding molecular orbital is BMO. Examples of BMO are, अब इसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ऐसे लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा 2p, पाई 2p, ऐसे लिखते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंड एंटी बॉन्डिंग को कैसे लिखेंगे? एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लगा देते हैं, राइट डाउन दिस थिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे, एंटी बॉन्डिंग को एक स्टार लग जाता है, ओके डन। ओके अब फॉर्मेशन डायग्राम से दिखाते हैं थोड़े, you have to know these diagrams. Internuclear axis is taken as z-axis, I think is mentioned, for example. अब देखो फर्स्ट वन, 1s ऑर्बिटल्स अगर बॉन्डिंग बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं? 1s plus 1s atomic orbitals are combining to form a bonding molecular orbital. तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब देखो इस डायग्राम को समझते हैं। BMO and it is sigma 1s. Sigma 1s मतलब क्या? Bonding molecular orbital formed when 1s orbitals combine. अभी ये जो दो डॉट्स दिख रहे हैं, these two dots represent the nuclei of the two atoms. This means what? And दोनों का ही देखो प्लस प्लस लिखा है, दोनों का ही वेव्स इन फेज है,
इन फेज है, इसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एंड दैट इज व्हाई BMO विल बी फॉर्म्ड। एंड ये बीच में प्लस साइन क्यों डाला है? बिकॉज बोथ आर कंबाइंड, both are having the same phase, so the resultant will also have the same phase. तो ऐसा दिखा सकते हैं। अभी 1s और 1s का एंटी बॉन्डिंग बनाना है, तो एक का प्लस एक का माइनस। So as you can see, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक रीजन है जहाँ पे कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि पहले वाले में देखो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था वहां पे दो न्यूक्लियर के बीच में प्लस बनाया था, दो न्यूक्लियर के बीच में प्लस बनाया था, मतलब दो न्यूक्लियर के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी। बट अभी क्या हो रहा है इस केस में, सेकंड केस में दो न्यूक्लियर के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, इस रीजन में खाली हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है फिर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है न्यूक्लियस के इस तरफ और इस न्यूक्लियस के इस तरफ। इसके लिए वहां पे देखो प्लस माइनस लिखा गया है। अनदर थिंग इज दैट जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं नोड। दिस वी हैव डन इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है उसको बोलते हैं हम लोग नोड। ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज वन नोड। Also we can say here node is same as nodal plane। ये एक प्लेन है और इस प्लेन के यहाँ पे देखो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस प्लेन। So this is the nodal plane। So if I ask you how many nodal planes are there when 1s orbitals combine out of phase, तो क्या बोलोगे? How many nodal planes are there when 1s orbitals combine out of phase? One. Yes, so one nodal plane। Also if I ask you how many nodes are present when two 1s orbitals combine out of phase, तो भी क्या बोलोगे? One. वन। यहाँ पे जितने नोड्स है उतने नोडल प्लेन्स है, याद रखो ये। नेक्स्ट, तो ये क्या है? सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s।
ओके, तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं डायग्राम देके कि ये क्या है। नेक्स्ट, इसमें देखो internuclear axis is 2pz. Along the internuclear axis, I am making 2pz orbitals overlap in a constructive manner, that is in phase. तो इन फेज हो रहा है, इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो मिला के बड़ा प्लस, और बाकी जगह माइनस, तो वो बाकी यहाँ पे कोने में माइनस, यहाँ पे कोने में माइनस। The dotted lines represent the nodes. So now tell me, how many nodes are here when sigma bond is formed between p orbitals, 2p orbitals? So there are 2 nodes formed when 2p orbitals combine in phase constructively, forming a sigma bond. ये sigma bond है, कैसे समझ में आया sigma bond है? क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी यही है और एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी आ रहे हैं ऐसे, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, लाइक वी हैव डन इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन कोलिजन और हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन। ऑल्सो हेड ऑन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैप, या तो आप बोलो एक्सियल बोलो या फिर आप हेड ऑन बोलो, एक्सियल ओवरलैप और हेड ऑन ओवरलैप, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर कराएंगे सिग्मा बॉन्ड में, तो ऐसा हो जाएगा, ये भी सिग्मा है, ये भी आ रहे हैं अलोंग द z एक्सिस, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ फेज है, एक इस तरफ प्लस है और दूसरा इस तरफ माइनस है, तो ये आउट ऑफ फेज हो गया ना, एक प्लस एक माइनस, इसके लिए आपस में वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। How many nodes are formed when 2pz orbitals are combining destructively, forming antibonding sigma bonds? 3. 3. Right. Okay. नेक्स्ट, अब पाई बॉन्ड में आते हैं। अब देखो 2px और 2ps लिया है और z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड बनेगा। So this is the representation of pi bond. ऊपर प्लस, इसके लिए यहाँ पे भी ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इसके लिए यहाँ पे भी नीचे माइनस, एंड दीज आर द न्यूक्लियाई। सर्कल जो ब्लैक दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो न्यूक्लियाई है। How many nodes are formed in this case?
1. 1. So the number of nodes is 1 here. वही नोडल प्लेन भी है हमारा. मतलब क्या? मतलब इसको हम लोग ऐसे अगर प्लेन ड्रॉ करेंगे क्या से, YZ प्लेन आ जाएगा. तो ऐसा एक प्लेन आ जाएगा ना. आई शो द प्लेन. दिस इज द प्लेन. तो ऐसा प्लेन आ जाएगा ये. दिस इज द नोडल प्लेन. This was pi. It is pi but bonding. Why bonding? Because ऊपर यहाँ पे दोनों ही प्लस थे और यहाँ पे नीचे दोनों ही माइनस थे, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना. अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है जरूर. पाई एंटी बॉन्डिंग, तो ऐसा हो जाएगा. ऐसा हो जाएगा. सर ये स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आएंगे. हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में. दे विल गिव यू दिस एंड दे विल आस्क यू कि दिस रिप्रेजेंट्स व्हिच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके सर. बट देन हमारे सिलेबस में 1 और 2 तक ही है. 1s 2s 2p, दैट्स ऑल. So इतना ही we have to remember. We don't need 3s 3p and all those things. 2s 2p तक ही है हमारा. How many nodes are here? Or how many nodes are formed in this particular antibonding molecular orbital? How many nodes are here? 2. 2, right? 2 nodes. Only 2. एक प्लेन अगर लेंगे तो नोडल प्लेन ऐसा एक नोडल प्लेन आएगा और दूसरा नोडल प्लेन ऐसा आएगा. जितने डॉटेड लाइंस बनाए हैं उतने नोडल प्लेन्स भी है, उतने ही नोड्स है. ओके. वैसे 2px 2ps के बदले 2py लिख देंगे तो भी ऐसे ही हो जाएगा. पाई स्टार 2py हो जाएगा. ऑलराइट. ये शेप्स थे. यहाँ पे वही मैंने लिखा है नोड्स के बारे में. Actually, dotted lines represent the nodes.
Okay, so nodal planes, nodes. Okay. Next, Girard molecular orbitals. Girate, girate and ungirate ऐसा बोलते हैं. ये बहुत सिंपल है, सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है. इसको चेक करने का तरीका बता देता हूँ. जीरेट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में क्या होता है, सिमेट्री होती है इन्वर्जन के बाद. उनको टिल्ट करके देखना पड़ता है. टिल्ट करके देखने के बाद अगर सेम चीज मिली तो वो जीरेट है, और अगर अलग चीज मिली टिल्ट करने के बाद तो अनजीरेट है. तो थियरी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, पहले डायरेक्ट दिखा देता हूं मैं इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है इसका. If there is a question of this kind, show that these are girate. Now see, in the exam nobody will ask you to show, to draw and show, because this is an objective paper. But for your conceptual understanding, I have given this question. अब देखो, show that these are girate. Sigma 1s. Okay, तो पहले sigma 1s को देखो. अब sigma 1s ये होता है, ये होता है sigma 1s. क्या होता है अभी जीरेट में, पहले ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है उसके अलाउंग पहले एक बार रोटेट करो इस चीज को. जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको इस एक्सिस के अलाउंग रोटेट करो. तो पहला काम वो है. तो क्या होगा, अगर मैंने इसको रोटेट किया अराउंड दिस एक्सिस तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना, ये ऐसे ही मिलेगा फिर से. राइट, बिकॉज ये थ्रू आउट प्लस ही है ना, तो उसको तुम कैसे भी घुमाओ तो वो बीच में प्लस ही रहने वाला है. सेकंड रोटेशन इज अलोंग दिस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस. तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बट फिर भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज ये पूरा प्लस है. तो अल्टीमेटली दो रोटेशन के बाद भी यही रहेगा. Hence, this is called girate. पहला रोटेशन ऐसा, मतलब about the axis, and दूसरा रोटेशन about the perpendicular axis. Next सर ये example. थोड़ा बहुत डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के जैसे इमेजिन करना है क्या? हाँ, यहाँ पे दो ही बार रोटेट कर रहे हो बस, only twice. हाँ, थर्ड वाला छोड़ देना है. हाँ, थर्ड कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही बार. इसमें कैसे भी घुमाओ यही आ रहा है ना. नेक्स्ट वन, सिग्मा 2pz. इसको ऐसे घुमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर से. And again now about the vertical axis, if I spin this, तो क्या होगा, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा. बट अल्टीमेटली तो वही हुआ ना फिर, सेम एज द ओरिजिनल वन. So again this is girate. One more example, इससे और भी क्लियर हो जाएगा. पाई स्टार 2py. अब पाई स्टार 2py तो ये होता है. अब इसको रोटेट करोगे अराउंड दिस तो ये नीचे वाला लोब ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला लोब नीचे चला आएगा. सेम थिंग विल हैपन दिस साइड आल्सो. जो नीचे वाला लोब है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला लोब नीचे चला आएगा रोटेट करोगे तो ऐसा मिल जाएगा.
अभी अराउंड वर्टिकल परपेंडिकुलर एक्सिस रोटेट करोगे तो ये पूरी चीज यहां आ जाएगी और ये पूरी चीज यहां चली जाएगी. So finally we will get this. Can I say this is again exactly same as the initial one? ऐसा ही हो गया ना फिर से. So this is again Gired. Any doubt? सर नॉन जीरेड कब बनेंगे फिर? हाँ करेंगे. Ungired, non-gired नहीं, ungired. तो ये था gired. So this was gired. अब ungired देखते हैं. Ungired मतलब क्या? रोटेशन के बाद दो अलग मिल जाएगा. देखते हैं. वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं. Show that these are ungired. तो स्टार्ट करते हैं. देखो अब यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s. तो सिग्मा स्टार 1s को देखो ध्यान से. पहला रोटेशन में अगर ऐसा करूंगा तो उससे तो कुछ भी नहीं होने वाला है कि ये थ्रू आउट प्लस ही है ना. तो इसका ऊपर नीचे तो कुछ नहीं है. तो कैसे इसको मैं रोटेट करूंगा ऐसे तो सेम रहने वाला है. But now if I do a rotation around this vertical axis, तो अभी ये वाला लोब इधर चला जाएगा, ये वाला लोब इधर चला जाएगा. राइट. तो अब चेक करो इसको और इसको. अब अलग हो गए ना दोनों. ओके, इज इट क्लियर? यस सर. फाइनली और इनिशियली उन दोनों को चेक करना है. बीच में कुछ नहीं करना है. चेक हमेशा फाइनल रोटेशन के बाद और बिल्कुल पहले जो था बिफोर रोटेशन उसको. इन दोनों को चेक करना है. नेक्स्ट सिग्मा स्टार 2pz. देखो पहला रोटेशन किया है अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं बिकॉज ये पूरा नेगेटिव ही है और ये प्लस है. तो इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी लोब नेगेटिव है थ्रू आउट. तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो भी नेगेटिव ही रहेगा. तो इसके लिए इसमें कोई चेंज नहीं आया फर्स्ट रोटेशन के बाद. अब सेकंड रोटेशन करेंगे. तो सेकंड रोटेशन से क्या होगा? ये वाला पूरा जो है वो इधर चला जाएगा और ये वाला जो है वो इधर चला जाएगा. बिकॉज दिस इज द रोटेशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस. करेक्ट. तो रोटेशन के बाद ऐसा आ जाएगा
ऐसा आ जाएगा रोटेशन के बाद। अब चेक करो इसको और इसको, अलग है ना पूरा। Okay. Next, pi 2px, फर्स्ट रोटेशन में पूरा बदल जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। बट सेकंड रोटेशन के बाद कुछ नहीं होगा, तो सेकंड रोटेशन में ये थ्रू आउट ये नेगेटिव ही है, तो इसको आप ऐसे घुमाओगे तो भी ये नेगेटिव रहने वाला है ना ऊपर का। Now compare this and this. Both are different. So this is again ungirate. समझ में आ गया जीरेड एंड अनजीरेड? Okay. So this was about girate and ungirate orbitals. तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। Now I'll show you the definition. हाँ, अब देखो, we need to rotate an orbital about the line joining the two nuclei. मतलब पहला रोटेशन जो कर रहे थे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के along. So we need to rotate an orbital about the line joining the two nuclei, and then again rotate the orbital about the line perpendicular to the line joining the nuclei, and then again rotate the orbital about the line perpendicular to the line joining the nuclei. ये second rotation किया vertical line के along. If we find that the final orbital obtained is exactly same as the orbital before rotation, that means the orbital is girate. Okay.
ओके तो वही यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन के हिसाब से। And now if I want to define ungirate, then so ungirate molecular orbitals are not symmetrical with respect to inversion. Again the same thing, we will rotate an orbital about the line joining the two nuclei. We need to rotate the orbital about the line joining the two nuclei, and then again rotate the orbital about the line perpendicular to the line joining nuclei. If we find that the orbital after rotation and the orbital before rotation have different signs on the lobes, then the orbital is ungirate. Different signs मतलब क्या? जो वेव फंक्शंस के साइंस हम लोग प्लस माइनस कर रहे थे वो। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, अनजिरेट था ये, तो इसमें जो लोब पे साइन है ऊपर वाले लोब में, दिस इज कॉल्ड द अपर लोब। तो अपर लोब में क्या साइन है रोटेशन से पहले? प्लस। और बिल्कुल रोटेशन के बाद, दोनों रोटेशंस के बाद अल्टीमेटली अपर लोब में साइन आ गया नेगेटिव। तो अपर लोब में देखो अभी प्लस माइनस हो गया, मतलब लोब्स के साइंस बदल गए, इसके लिए उसको बोल रहे हैं अनजिरेट। सिमिलरली ये लोअर लोब है, ये भी लोअर लोब है। तो रेस्पेक्टिव लोब्स को कंपेयर करना है, ऊपर को ऊपर वाले के साथ कंपेयर करना है, नीचे को नीचे वाले के साथ कंपेयर करना है। यहां पे भी वही हुआ, दिस इज वन लोब, सो आई विल कंपेयर दिस लोब। तो बदल गया साइन, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस। छोटे वाले लोब का साइन भी बदल गया, माइनस था अभी छोटे वाले लोब का हो गया प्लस। तो रेस्पेक्टिव लोब्स में देखना है। सो अनजिरेट एंड जिरेट में फाइनल लोब्स एंड इनिशियल लोब्स में साइंस को कंपेयर करना है। सो वी आर डन विद जिरेट एंड अनजिरेट। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा अवबव प्रिंसिपल होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, तो अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। Consider z-axis to be the internuclear axis. अगर z-axis internuclear axis होगा तो सिग्मा बॉन्ड भी z-axis के along ही बनेगा, because sigma bond is along the axis and pi bond is perpendicular to the internuclear axis. तो अगर मैंने z-axis को ले लिया internuclear axis, तो उसके हिसाब से I am now going to write down the molecular electronic configuration. जैसे आप वहां पे करते हो,
1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे करके आप लिखते हो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखे जाते हैं। तो इसको भी बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो करने वाले हैं उसको भी बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है? ये एटम के लिए एक पर्टिकुलर, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, ऑक्सीजन हो, नियॉन हो, कोई एक एटम के लिए हम लोग लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। अभी हम लोग मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे, पूरे मॉलिक्यूल के लिए, तो इसके लिए बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, if the total number of electrons in a molecule is less than or equal to 14, very very important point, आपको चेक करना पड़ेगा number of electrons in the molecule. If it is less than or equal to 14, then the electronic configuration is written as this. क्या लिखना है? पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या लिखना है? फिर पाई 2px, और पाई 2px देखो इक्वल टू पाई 2py लिखा है, मतलब पाई 2px और पाई 2y दोनों की एनर्जीज बराबर है। जब एनर्जीज बराबर हो जाती है तो हंड्स रूल के हिसाब से भरना पड़ता है। मतलब क्या, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, क्योंकि बोथ ऑफ दिस आर द सेम एनर्जी। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज हंड्स रूल कैन नॉट बी वायलेटेड। ओके, तो आपको ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा। पहले 1s सिग्मा, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या है पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, और फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, and at the end sigma star 2pz. This is the increasing order of energies of the molecular orbitals as per experiments. तो इसी ऑर्डर को फॉलो करके हमें भरना है। तो एक काम करते हैं, अभी एक भरते हैं हम लोग। If the total number of electrons in a molecule is less than or equal to 14, तभी हम लोग ये यूज करते हैं। अब बताओ मुझे, if I want to fill for N2 plus, तो N2 plus अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो how many electrons are there in N2 plus? How many electrons are there in N2 plus? 30. हाँ, तो पहले 7 into 2 14, और +1 चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उसने लूज किया है, सो -1 करोगे, सो 14 minus 1 is 13। एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, दैट इज वाई +1 है ना चार्ज। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं N2 plus में। इलेक्ट्रॉन्स, अब 30 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, भरते चलो। 13 is less than 14, yes 13 is less than 14, तो भरना है ऐसे। कैसे भरेंगे अभी देखो, यहाँ पे 2 2 2 2 कितने हो गए? 8 हो गए ऑलरेडी। ओके, 8 हो गए। अभी कितने बाकी है? 5। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कितने हो गए? 10 हो गए। फिर से यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा।
और फिर से यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो कितना हुआ 12 हो गए, 12 हो गए और एक बाकी है तो एक यहाँ डाल दो, हो गए 13। Okay. Now I'm asking a question. How many electrons are there in bonding molecular orbitals for this particular species? How many electrons are there in bonding molecular orbitals for this particular species? 8. हाँ, तो काउंट करते हैं। ये है बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग, ये भी है बॉन्डिंग। जितने भी स्टार के बिना है वो स्टार के बिना होते हैं बॉन्डिंग, और जो स्टार वाले होते हैं वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग। 9. So how many electrons are there in bonding molecular orbitals for this? Nb बोलते हैं उसको। Nb is equal to 8, 9 ना, कितना है 9 है ना, 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 9. 2 8 plus 1 9. There are 9. 9 electrons are there in bonding molecular orbitals. उसको represent करते हैं Nb से, and Na is equal to number of electrons in the anti-bonding molecular orbitals. So how many electrons are there in the anti-bonding molecular orbitals? 4. This one and this one. So number of electrons in bonding molecular orbitals is 9. Number of electrons in anti-bonding molecular orbitals is 4. ये किसके लिए किया हम लोगों ने? N2 plus के लिए किया। Next, write down the electronic configuration for C2. C2 का क्या होगा? How many electrons are there in C2? 12. 6 into 2, that is 12 electrons are there in C2. तो 12 electrons भरने हैं हमें। 12 is less than 14. Yes, 12 is less than 14. तो वापस ये वाले यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 2 2 कितने हो गए? 8 8 हो गए, 10 12। How many electrons are there in bonding molecular orbitals? Eight. Now there are 8 electrons in bonding molecular orbitals. And how many electrons are there in anti-bonding molecular orbitals? 4. 4. 4. Correct. Write down the electronic configuration of O2. O2 में कितने electrons होंगे? 8 into 2, that is 16 electrons. 16. But 16 is now less than 14? Less than or equal to 14 or not? Not. Greater than 14. So 16 is less than or equal to 14 वाला कंडीशन तो नहीं हो सकता है, यानी ये वाला आप यूज अभी नहीं कर पाओगे। अभी एक स्लाइट चेंज आता है, वो ये होता है, इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन 14 देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन एज दिस। मतलब क्या हो गया, ये जो है इस पोर्शन में बस चेंज आ गया। अब इस पोर्शन में चेंज करने का मतलब क्या है? देखो पहले ऐसा था,
लेस देन और इक्वल टू 14 जब था तब 2pz सिग्मा 2pz बाद में था, सिग्मा 2pz बाद में था और पाई 2px पाई 2py पहले था। इन दोनों के ऑर्डर में रिवर्सल आ गया है, स्वैप मारा है, तो स्वैप मार दिया तो अभी पहले सिग्मा 2pz आ गया और बाद में पाई 2px और पाई 2py आ गया। So this is a change which happens when the number of electrons is greater than 14. अब ऑक्सीजन भरना है तो 16 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे कैसे? 2 2 2 2 2 2 2 1 1 चेक करो 16 है। Okay. How many electrons are there in the bonding molecular orbitals? 10. 10. 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10. So number of electrons in bonding molecular orbitals is 10 and number of electrons in anti-bonding molecular orbitals is 6. So yeah, we will continue in the next lecture and we'll finish this part. Okay. अभी मैं notes नहीं भेज रहा हूँ. After the next lecture, I'll send. We will start with this electronic configuration again.